اچھا جی، آپ کو یہ دس از ریئلی گڈ. خواتین کے خلاف تیزاب گردی کی روک تھام کے لیے پنجاب ایسڈ کنٹرول ایکٹ لایا گیا ہے. پنجاب اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے داخلہ نے پنجاب ایسڈ کنٹرول ایکٹ 2025 کے ڈرافٹ کی منظوری دے دی ہے اور نئے قانون میں بغیر لائسنس تیزاب کی فروخت ناقابل ضمانت جرم قرار دیا گیا ہے، جبکہ تیزاب گردی سے متاثرہ افراد کو معاوضہ بھی دیا جائے گا. صوبے میں تیزاب کی غیر قانونی فروخت پر 3 سال قید، 5 لاکھ جرمانہ ہوگا، 10 سال قید اور 15 لاکھ جرمانہ ہونا چاہیے اس چیز پہ. بٹ اینی وے بل کی ایک شق کے مطابق لائسنس رکھنے کے باوجود اگر تیزاب کی فروخت میں لاپرواہی ثابت ہوئی تو 2 سے 5 سال قید اور 2 سے 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. تیزاب گردی کے واقعات پورے ملک میں رپورٹ ہوتے رہتے ہیں جن کا زیادہ تر نشانہ خواتین ہی بنتی ہیں. پنجاب کی بات کریں تو پولیس کے ریکارڈ کے مطابق گزشتہ سال صوبے میں خواتین پر تیزاب پھینکنے کے 92 مقدمات درج ہوئے ہیں. کنٹرول ایکٹ کا بل رکن پنجاب اسمبلی ہنا پرویز بٹ کی جانب سے پیش کیا گیا تھا اور ہنا پرویز بٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے. چیئرپرسن پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی ہیں. ہنا کیا حال ہے آپ کا؟ ہنا ہم یہ تو نہیں پوچھیں گے کہ اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، کیونکہ اس کی ضرورت بہت ہے، لیکن واٹ ایکچولی ہیپنڈ ریسنٹلی؟ آپ کے سامنے ایسا کیا آیا تھا کہ آپ نے یہ ایکشن لیا؟ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو. میں نے پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی جوائن کیا ہے سنس دا لاسٹ کپل آف منتھس، اور میں ہمیشہ سے وکٹمس کو خود ملنے جاتی ہوں. اور ریسنٹلی ایسے انسیڈنٹس ہوئے جہاں میں گئی اور بہت سی خواتین کا چہرہ، ان کی آنکھیں، ان کی باڈیز خراب کر دی گئی تیزاب پھینکنے پہ. اور وہ یوزلی ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایسے مرد ہوتے ہیں کہ اگر عورت نے شادی سے انکار کر دیا ہے، اگر فیانسے ہے اور اس نے لڑکی نے کہا کہ میں نے شادی نہیں کرنی، یا کوئی ایسا ریلیشن شپ تھا جس میں لڑکی بعد میں نہیں مانی، تو ان کو یہ بدلہ لگا کہ وہ اس کے منہ پہ تیزاب پھینک دیں اور تیزاب سے بچی کا منہ خراب کر دیں. بلکہ میں تو یہاں میں آپ کی بات میں ایڈ کروں گی کہ یہ تو پھر بھی آپ انگیتر ہو یہ کر رہی ہیں جہاں کوئی ریلیشن بھی نہ ہو، لیکن اگر لڑکی ایڈوانسز بھی قبول نہ کرے کسی غیر مرد کے بھی، تو وہ بھی انف ہوتا ہے ان کے لیے تیزاب پھینکنا. Anyway, please go on. But mostly recently because میرے جس دن سے میں نے PWPA جوائن کیا ہے، I've tried کہ میں ہر ڈسٹرکٹ میں وکٹمس کو خود جا کے ملوں. جب آپ خود وکٹمس کو خود جا کے ملتے ہو تو آپ کو ان کا احساس اور ایمپتھی زیادہ ہوتی ہے. اور میں جب مل رہی تھی وکٹمس کو، بہت سی ایسی خواتین جن کے منہ پہ تیزاب پھینک کے ان کی چہرہ خراب کر دیا، ان کی آنکھیں خراب کر دی. ایک ایسی بچی میں ملتان میں ملنے گئی جس کے اوپر اتنا ایسڈ پھینکا کہ وہ بچی اپنی اس سے جان لوز کر دی. سو obviously then I knew that we need to have a bill جس میں سیل کے اوپر ریگولیشن ہو، سیل اینڈ پرچیز پہ. تو پھر I started formulation this bill، اور اس میں ہوم ڈپارٹمنٹ نے بھی، لا ڈپارٹمنٹ میں نے بھی جو بہت ہیلپ کیا. جتنے لوپ ہولز تھے ہم نے ان کو جو ہے ٹرائی ٹو ایڈریس کیا. اس میں بیسکلی روٹ کاز کو ایڈریس کیا گیا ہے کہ اگر جو تیزاب ہے اس کو بیچنا اور اس کو خریدنے کو ریگولائز کیا جائے. کیونکہ ابھی اس سے پہلے کہ جو بھی جاتا ہے جتنا بھی مرضی تیزاب خریدتا ہے، وہ تیزاب اتنے کم اماؤنٹ میں دستیاب ہوتا ہے، اور کوئی بھی بندہ بدلے کی صورت میں کسی عورت کے منہ پہ تیزاب پھینکتا ہے، اور اس بچی اور عورت کا جو اس کے بعد سیلف کانفیڈنس، جو اس کے بعد اس کی شکل خراب ہو جاتی ہے، پوری زندگی برباد ہو جاتی ہے، جان چلی جاتی ہے، زندگی برباد ہو جاتی ہے. مطلب بہت سی لڑکیاں تو مر جاتی ہیں اسی سارے، مطلب اور پھر زندگی برباد ہو جاتی ہے ایبسلیوٹلی، بیکاز تیزاب سے شکل یا جسم یہ سب کچھ نہیں، یہ اسپرٹ کو توڑنے والی بات ہے کہ آپ کی اسپرٹ ٹوٹ جائے، کہ اس کے بعد آپ زندہ تو ہیں لیکن اس کے بعد آپ کچھ کر نہیں سکتے، یو کانٹ. تو یہ ایکچولی میرا خیال ہے زیادہ. اس سے پہلے ہم نے تیزاب گردی کے لیے بھی قانون سازی ہوئی بھی، آپ کو پتہ ہے شرمین عبید کی وہ ڈاکیومنٹری آئی تھی، اس کے بعد بہت بات ہوئی. اور اب آپ نے ایسڈ کی سیلنگ اینڈ پرچیزنگ کے لیے بھی قانون سازی کی ہے. اصل مسئلہ آتا ہے امپلیمنٹیشن کا، کہ امپلیمنٹیشن میں کوتاہی ہوتی ہے جس کی وجہ قوانین تو بہت بن جاتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، قوانین ہونا ضروری ہیں سرٹنلی. امپلیمنٹیشن کیسے یقینی بنایا جائے ان چیزوں پہ؟ بالکل آئی اگری ود یور واٹ یو سیڈ. 2016 میں پہلا قانون آیا تھا پنجاب
प्रोटेक्शन अगेंस्ट विमेन अगेंस्ट वायलेंस, तो वो 2016 में कानून तो आया, 2017 में अथॉरिटी बनी, लेकिन उसके बाद जैसे हुकूमत चेंज हुई उसको कोई प्रायोरिटी नहीं दी गई। अब दोबारा जब विद मरियम नवाज शरीफ कमिंग एज अ CM पंजाब, उन्होंने दोबारा PWPA को, पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी को एक्टिव किया। उसके बाद मैंने मेक श्योर किया कि जितनी भी ख़वातीन हों उनको हम विक्टिम्स को मिलें और एक प्रोटेक्शन सिस्टम डेवलप करें जिसमें अंडर वन रूफ ख़वातीन अगर आती है तो उसको FIR से लेके जस्टिस सिस्टम तक, रिहैबिलिटेशन तक सारी फैसिलिटीज़ को एक्सेस मिले। लेकिन अभी भी जिस तरह आपने कहा कि कानून एग्जिस्ट करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन वीक होती है, बिल्कुल आई थिंक कि हमें सख्त से सख्त सज़ाएँ देनी चाहिए, हमें फॉलो अप करना चाहिए। मैं आपको सीरियसली बताऊं, जब से मैं इस अथॉरिटी में आई हूँ तो पुलिस इज़ डूइंग इनक्रेडिबल जॉब। जब भी किसी भी बच्ची की FIR की ज़रूरत होती है तो एक तो सबसे पहले 15 का सिस्टम कॉल का इंट्रोड्यूस हुआ है, उस पर 15 पे आप कॉल करते हो, वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन पे इमीडिएटली आपकी कॉल जो है ट्रांसफ़र होती है, पुलिस एक्शन लेती है, FIR होती है। और मैंने तो अब ये किया कि अपने अदारे को प्रोसिक्यूटर जनरल के साथ भी MOU साइन किया है, बिकॉज़ केस मजबूत नहीं होते, जमानतें हो जाती हैं। अच्छा, एक और भी बड़ा इशू होता है जिस पे ऑब्वियसली आप नज़र भी डाल सकती हैं और जोर भी डाल सकती हैं ना, कि जब ये ऐसे विक्टिम्स जो हैं ये हस्पतालों में पहुंचते हैं, और ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल टाउन्स, तो हस्पताल वाले भी बड़ा डिले कर देते हैं सारे प्रोसेस को, ट्रीटमेंट को डिले कर देते हैं, इतना पेपर वर्क होता है, पुलिस कार्रवाई होती है कि वो जो उस वक्त टाइमली उनको ट्रीटमेंट चाहिए होती है वो मिलती नहीं है फॉर दिस वेरी रीजन। तो उनको भी कोई इंस्ट्रक्शंस हैं? बिल्कुल, देखिए सैडली एक तो ये बहुत बात थी कि कुछ यूनिट सिर्फ मुल्तान में एग्जिस्ट करते हैं, बर्न यूनिट, और कुछ स्पेसिफिक अच्छे बर्न यूनिट्स बहुत कम जगहों पे एग्जिस्ट करते हैं। तो इंशाल्लाह अब हम ये कोशिश करेंगे कि हर 36 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारा एक अच्छा बर्न यूनिट जो हो वो एक्सिड विक्टिम्स के लिए मौजूद हो। इसके बाद बिल्कुल रेप केसेस में भी बहुत से ऐसे होता है कि छोटी छोटी बच्चियाँ अगर रेप से गुजरती हैं तो वहाँ उनको हॉस्पिटल्स ही कई दफ़ा उनको नहीं ले रहे होते क्योंकि उनको FIR का प्रोसेस, ए प्रोसेस, तो इसमें ज़रूर हम इस पे काम कर रहे हैं। जिस तरह 15 पे कॉल किसी भी औरत को कोई भी कॉल हो, हर FIR should be done immediately. Similarly, the hospitals को हम ये दे रहे हैं कि कोई भी एसिड विक्टिम का केस हो या खुदा न खास्ता रेप का केस हो या और कोई ऐसे ख़वातीन पे वायलेंस का केस हो तो उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल में बच्चियों को रखना चाहिए। And Hina, if we may add कि क्योंकि हॉस्पिटल अपना काम जल्दी से शुरू कर दे और जो परपेट्रेटर है जिसने वो तेज़ाब फेंका है या फिर जो भी क्राइम किया है पुलिस उस पर फौरी काम करे, क्योंकि अक्सर विक्टिम को इतनी बुरी तरह कर दिया होता है कि उनको अपनी ट्रीटमेंट में इतनी देर लग जाती है कि वहाँ जो परपेट्रेटर है उसको भागने का मौका मिल गया। तो दोनों चीज़ें नीड टू बी डन साइमल्टेनियसली। मैं आपको रिसेंटली बताऊं कि मैं मेयो हॉस्पिटल गई और वहाँ एक बच्ची थी जिसका मुंह और उसकी दोनों आंखें तेज़ाब से ख़राब कर दी गई, और मैं जब आई वेंट टू मीट हर तो उसकी नज़र भी ख़राब होगी। तो मैंने उस बच्ची से पूछा कि बेटे आपके साथ क्या हुआ था, तो उसने मुझे कहा कि मैंने ख़ुद अपने मुँह पे तेज़ाब फेंक लिया। हालांकि वो सेफ सिटी की रिकॉर्डिंग में आया था कि वो 2 लड़कों ने उसके मुंह पे तेजाब फेंका। लेकिन इतना sometimes the victims are so scared. Yeah, she had 2 kids, so she was so scared that so इसीलिए हमने ये चीज़ें की हैं कि इसमें हम स्टेट जो है वो एक्शन लेगी और इसको अच्छा राजीनामे भी होते हैं, आपको पता है। अब हमने वो तो कर दिया कि हम जो गैरत के नाम पर कत्ल किए जाते हैं, झूठी गैरत के नाम पर, उसमें राजीनामा नहीं हो सकेगा और स्टेट जो है वो एक फरीक बनेगी। तो क्या हम ये एसिड केसेस, एसिड थ्रोइंग केसेस में भी ये कर सकते हैं कि हाँ जी अगर राजीनामा हो भी गया तो स्टेट इन केसेस को परसू कर सकती है? दूसरा ये कि ज़मानतों वाला बड़ा इशू है, इतनी कच्ची दफ़ात दर्ज होती हैं FIRों में कि अगले दिन ज़मानत हुई भी होती है। बिल्कुल, सबसे पहले कि जब आपको
जब तक आपका जस्टिस सिस्टम कोर्ट से स्ट्रॉन्ग नहीं होएगा तब तक जो इंसाफ है वो ट्रिकल डाउन नहीं होएगा। हमारे पास बहुत सी ऐसी बच्चियाँ आती हैं जो रेप से गुजरती हैं, बहुत डोमेस्टिक वायलेंस से गुजरती हैं, एसिड अटैक से गुजरती हैं, लेकिन उनको अभी तक जस्टिस सिस्टम में यकीन नहीं है। तो ये तो हम इंश्योर करेंगे। नंबर 1 हमने PWPA ने MOU साइन किया प्रोसिक्यूटर जनरल तक भी कि हमने मेक श्योर करना है कि किसी भी बच्ची के साथ जो इंसाफ है उसको हम 100% दें। ये वाला भी जो ऑफेंस है एसेट थ्रोइंग का, और ये लाइसेंस बगैर लाइसेंस अगर आप एसेट सेल करो तो ये भी नॉन पेलेबल ऑफेंस होएगा। सो स्ट्रिक्टर एक्शंस की ज़रूरत है, वेरी स्ट्रिक्ट टेस्ट केसेस, एग्जांपल्स, पनिशमेंट की, और बहुत सी और भी हमारे माशरे में इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि बच्चियां अभी तक रिपोर्ट नहीं करती, दे सो स्केयर्ड। रेप की बहुत से पेरेंट्स हैं जो कहते हैं हमारी बच्ची की इज़्ज़त ख़राब हो गई है और हमने रेप का केस नहीं जो है उसको रिपोर्ट करना। तो आई थिंक इसमें ओवरऑल बहुत टैबू एग्जिस्ट करता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं कि जो मर्द हैं उनका ईगो होता है, ठीक है। मोस्टली ये होता है कि अगर एक औरत है, औरत को अपनी पोजीशन समझा जाता है और उस औरत ने आपकी बात नहीं मानी या उसने आपसे इनकार कर दिया तो वो ईगो इशू आ जाता है, और इस ईगो और रिवेंज के तौर पे उसने औरत के ऊपर मुंह पे तेज़ाब फेंका। और ये बहुत से बंदे औरतों को रिलेशनशिप में कंट्रोल करने के लिए भी, डराने धमकाने के लिए भी कहते हैं कि हम तुम्हारा मुंह जो है तेज़ाब। अच्छा है ना, फाइनली एक और चीज़ जिस पे हम आपका एक ओपिनियन चाहते हैं, ये लेजिस्लेशन एंड ऑल वेरी गुड, एयर टाइट लेजिस्लेशन होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रूट कॉज को भी तो कुछ एलिमिनेट करना है। मतलब ये जो माइंडसेट है जो ये कहता है कि हाँ बिल्कुल किसी ने तुम्हें रिफ्यूज़ किया, जाओ उसको तबाह कर दो, बेसिकली बस कत्ल नहीं ना करना, ऑलमोस्ट कत्ल कर देना, तेज़ाब फेंकना, और उसके बाद जो उनकी ज़िंदगी होती है वो बिल्कुल यही होती है। तो उस माइंडसेट को बदलने के लिए कोई बातचीत, कोई कॉन्वर्सेशन, शायद मस्जिदों में जाके इमाम से बात करना, कोई अपने वहाँ कोई गैदरिंग हो लोगों की, ऐसे स्कूलों में बहुत एवेन्यूज़ हैं, लेकिन इस पे काम होना पड़ेगा तो होगा। बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं थैंक करूंगी कि जियो ने अपने मॉर्निंग शो में इतना इंपॉर्टेंट इशू हाईलाइट किया। दिस इज़ वन पार्ट ऑफ अवेयरनेस। सिमिलरली वी शुड ऐड दीज थिंग्स इन द करिकुलम कि ख़वातीन को इज़्ज़त देना, या जो माएँ हैं अपने बच्चों को जब ब्रॉट अप करती हैं तो सिर्फ बच्चियों को शर्म हया नहीं सिखाएं, बेटों को भी सिखाएं कि रिस्पेक्ट करना, ऑनर करना, औरत को अपना पोसेशन ना समझें, औरत को अपनी मलकियत ना समझें, बल्कि औरतों को इज़्ज़त रिस्पेक्ट दें। उनके पास भी एक आइडेंटिटी है अपनी डिसीजन मेकिंग की, पहली चीज़। दूसरी बात, तालीम करिकुलम में भी आपको बच्चियों को बताना पड़ता है कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, आपको अपना स्टैंड लेना ज़रूरी है, और लड़कों को भी बताएं कि कहाँ ख़वातीन की रिस्पेक्ट ज़रूरी है। इसके बाद आपकी माएँ जो हैं सबसे ज़्यादा तालीम कर सकती हैं। घर से जो तालीम आपको मिलती है कि ख़वातीन को कैसे ट्रीट करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अवेयरनेस थ्रू TV शोज़, अवेयरनेस, हम भी अवेयरनेस की एक मुहिम शुरू कर रहे हैं। ओवरऑल अवेयरनेस, मैं बड़ी खुश हुई हूँ कि कल ये मैंने कानून स्टैंडिंग कमेटी से पास हुआ तो सब चैनल्स ने इसको सब लोगों ने इसको इतनी अच्छी तरह उठाया, बिकॉज आई थिंक कि इसकी अवेयरनेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सख्त सज़ाएँ, बहुत टेस्ट केस एग्जाम्पल्स, ऐसे लोगों को पता हो कि हम इससे बच नहीं पाएंगे वाला यकीन हो। we need to make some examples out of it। बहुत शुक्रिया आपका है ना परवेज़ भट्ट साहिबा, थैंक यू फॉर योर टाइम।